Sonia Setia, your accounts and eco tutor. Hope everyone is doing great. So this video is for class 12th accountancy students. We were doing the back exercise of TK Goel from the latest edition of 25. We have completed questions up to 15. Question number 15 we have done in the previous video. So in today's video, we are going to discuss question number 16. You can take the screenshot from here as well as you can find this question in your book DK Goel class 12th accountancy latest edition 2025, right? So firstly, we'll read the statement, then we will solve this question, right? So question number 16, A, B, C. So there are three partners, A, B, C, and sharing profits and losses equally. So A, B, and C, their PSR is 1:1:1, right? So their fixed capitals were 8 lakh, 6 lakh, and 6 lakh, respectively. On 1st October 2023, right? On 1st October, you have to keep this date in mind very clearly. A advanced loan 1 lakh to the firm, and whereas C took a loan of 1,50,000 from the firm on the same date. So this is two events are happening on the same date on 1st October 2023. ए ने लोन दिया है फर्म को, यानी कि ए जो है वो इशू कर रहा है लोन फर्म को और सी ले रहा है लोन फर्म से, राइट? It was agreed among the partners that C will pay interest at the rate of 6% per annum. तो जो C है वो कितना लोन पे इंटरेस्ट देगा फर्म को, दैट इज 10%. Profit for the year ended 31st March 2024 amounted to 4,20,000, right? Before allowing or charging interest on loan, उन्होंने क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है 4,20,000 है, बट अभी ना ही तो चार्ज किया गया है इंटरेस्ट, ना ही अलाउ किया गया है. इट मीन्स we need to do the adjustments of interest before the appropriation of this profit among the partners, right? So pass journal entries for interest on loans and prepare current accounts of the partners because fixed capital is there. So we have to do the adjustments through the current accounts of the partners, right? Answer is given here. We can match the answer right after the solution, right? So let me share the whiteboard. So we are starting with the solution, right? तो पहले हम सारी की सारी जो चीजें हैं जो गिवन है वो नोट डाउन करेंगे so that इजीली हम क्वेश्चन को समझ पाए, राइट? So side by side, you people can also write all that is given in the question, right? So first of all, I'm writing that this is the question number 16. A, B, and C. Three partners are there and their PSR is, profit sharing ratio is 1:1:1, right? And their capitals are 8 lakh, 6 lakh, and 6 lakh, right? Now we need to write कि किसने लोन दिया है और किसने लिया है. So firm, आप फर्म को you can keep in mind the word firm कि फर्म ने
लोन लिया है या दिया है? सो फर्म टुक लोन ऑफ 1 lakh फ्रॉम ए, एंड फर्म gave loan of 1,50,000 टू सी। सो इससे आपको क्लियरली पता चलेगा, अब फर्म को ही जो है प्रायोरिटी में रखोगे कि फर्म ने लोन लिया है या दिया है। अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है कि ए गेव लोन टू द फर्म एंड सी टुक लोन फ्रॉम द फर्म, डोंट राइट इन दोज वर्ड्स, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो फर्म को अपने प्रायोरिटी पे रखना है। फर्म टुक लोन, फर्म टुक अ लोन ऑफ 1 lakh फ्रॉम ए। तो फर्म ने लोन लिया है किससे? ए से। एंड फर्म गेव लोन, फर्म ने लोन दिया है किसको? सी को। तो फर्म ने अगर लोन लिया है ए से, तो ये जो इंटरेस्ट होगा फर्म का एक्सपेंस हो जाएगा। और फर्म ने अगर सी को लोन दिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए इनकम बन जाएगी, राइट। तो सी को जो है पे करना है फर्म को, क्योंकि सी ने फर्म गेव लोन टू सी, सी ने लोन लिया है फर्म से, तो सी एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट देने वाला है किसको? फर्म को, जो कि फर्म की इनकम बन जाएगी, राइट। एंड प्रॉफिट बिफोर द अप्रोप्रिएशंस, बिफोर चार्जिंग एंड गिविंग इंटरेस्ट, हमारा है 4,20,000 का, राइट। तो व्हाट दे आर सेइंग, पास जर्नल एंट्रीज of charging interest and giving interest and prepare the current accounts of the partners, right? So first of all, हमें यहाँ पे तीन चीजें करनी पड़ेगी। एक तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है? इंटरेस्ट इज अ चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो भी एक एप्रोप्रिएशन होता है, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग नंबर ऑफ टाइम्स, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, राइट। तो हेयर वी नो इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो भी चार्ज वाली चीजें होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें देते हैं, देती है फर्म या लेती है, राइट। इंटरेस्ट अगर आ रहा है फर्म को तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में वो ट्रांजेक्शन किया जाएगा, और अगर फर्म दे रही है इंटरेस्ट तो भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ से बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस से, वो ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। तो चार चीजें हो जाएंगी मेनली जो हमें करनी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड सबसे पहले हमें इससे भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, राइट। जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो चार चीजें आपको यहाँ देख के चलनी है। नंबर वन, यू विल पास द जर्नल एंट्रीज। नंबर टू, you are going to prepare profit and loss account. Number three, you are going to prepare profit and loss appropriation account. And number four, we are going to make the partners current accounts, right? So we are moving towards the first step where we'll pass the journal entries, right? So come, we are passing the journal entries. So A ने लोन दिया था फर्म को, राइट। अभी हमने क्या लिखा था? आई शो यू, या। तो ए ने
फर्म ने लोन लिया है ए से, तो पहले हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। जब फर्म ले रही है लोन, अगर फर्म लोन ले रही है तो फर्म के लिए, यू गाइस टेल मी प्लीज, दैट इफ द फर्म इज टेकिंग लोन, तो जो उस पे इंटरेस्ट होगा वो फर्म का क्या होगा? Is it an expense or an income, right? As we know, if firm is taking loan and paying interest on that loan, that would be an expense for the firm. तो ये ए के लोन को लेके हम जर्नल एंट्रीज करेंगे दो। एज लोन अकाउंट, फॉर एज लोन अकाउंट। तो नंबर वन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट यू कैन राइट, कि स्पेसिफाई कर सकते हो आप क्या है, वैसे इंटरेस्ट अकाउंट को ही हम डेबिट करेंगे एज एन एक्सपेंस, बट यू कैन राइट कि ये इंटरेस्ट कौन सा है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। तो यू कैन कैलकुलेट दिस कि ए को जो लोन देना है फर्म ने, वो कितना बनेगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, just a second, let me check the date on 1st October. On 1st October, और ए की कैपिटल है हमारे पास 8 लाख। ओके, 8 लाख। एंड अक्टूबर से लेके 31st मार्च तक गिनो कितने मंथ्स हो जाएंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6 मंथ्स। एंड अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो वी टेक द रेट एज 6%। तो अगर लेट मी calculate this, give me a second, I'm calculating. So 8 lakh into 6 by 12 into 6 by 100. Just give me a second. Sorry. I'm taking the capital. Just excuse me. This is, I'm taking capital. तो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट लेना है। Just give me a second. We'll check the loan amount. We'll go back and we'll check कि A पे कितना, 1 लाख, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 लाख का लोन लिया है। तो 6 2 ज़ा 12, एंड 0 से 0 काट दोगे आप, एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये आपका 3000 बन जाएगा, राइट? आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो मेरे को मिस अंडरस्टैंडिंग से मैंने वहां पे कैपिटल डाल दिया, बट आपको लोन का अमाउंट डालना है, राइट? तो ये हमने कर दिया 3000 से इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री। लेट मी इरेज दिस, जस्ट अ सेकेंड। या, गुड टू गो। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री वी हैव पास्ड। नाउ, अभी हमने डिस्कस किया था, ये इंटरेस्ट अगर फर्म दे रही है तो भी, ये फर्म दे रही है, सो दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। और एज लोन अकाउंट को, व्हाई आई हैव क्रेडिटेड एज लोन अकाउंट हियर, बिकॉज वी नो कि जब भी फर्म लोन लेती है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? उसके लोन अकाउंट में। और अगर फर्म लोन लेती है तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से उसको एडजस्ट किया जाता है। ये दो चीजों का आपको बड़ा ही क्लियरली यू शुड नो, कि अगर फर्म ये खर्चा कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, यानी कि फर्म ने लोन लिया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा?
उस पार्टनर के लोन अकाउंट में, राइट, नॉट इन द कैपिटल और करंट अकाउंट। उसका कैपिटल और करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, उसका लोन अकाउंट से एडजस्टमेंट किया जाएगा, राइट। होप यू अंडरस्टूड। एंड इसको, इस इंटरेस्ट को हमने कहाँ राइट ऑफ करना है, कहाँ लेके जाना है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो इंटरेस्ट है दैट इज चार्ज। तो चार्ज वाली सारी चीजें कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो विल डू दिस ट्रांजेक्शन थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, interest on A's loan, interest on A's loan account. So amount would remain same, 3,000 and 3,000. You can write the narration by yourself. I'm not writing, this is your homework. You will write the narration by yourself, right? And do let me know in the comment section कि आपको ये एंट्री दोनों समझ आई है या नहीं आई, या कोई इशू है, या कोई डाउट है। You can write me in the comment section. Definitely I'll reply. So these two journal entries regarding A's loan we have passed. Now I'm moving towards the C's loan, right? अब हम C के लोन की बात करेंगे, C's लोन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या किया है, सी से फर्म ने लोन सी को दिया है, या फर्म गेव लोन 1,50,000 टू सी। तो अगर फर्म ने सी को लोन दिया है तो अब जो है इंटरेस्ट, पहले हमने डेबिट में लिखा था, अब हम कहाँ लिखने वाले हैं, अब हम क्रेडिट में लिखने वाले हैं। तो मैं पहले ही क्रेडिट में लिख देती हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन सी लोन अकाउंट। और डेबिट क्या हो जाएगा फिर, या तो उसका कैपिटल कम करोगे आप, या कैपिटल अकाउंट से ये जर्नल एंट्री करोगे, या करंट अकाउंट से करोगे, बिकॉज इसमें हम लोन अकाउंट नहीं लेते, राइट। जब फर्म ने लोन दिया होता है तो फर्म कहाँ से एडजस्ट करती है, फर्म उस पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से उस अमाउंट को एडजस्ट करेगी। सो आई राइट हियर सीज करंट अकाउंट, बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड। उन्होंने हमें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करने को बोला है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे फॉर द 6 months एंड फॉर 10% you will get 7,500, right? 7,500 here, 7,500 here. Let me erase this working. Here I'll pass the second journal entry. This is your homework. You have to write the description, narration by yourself, right? So I have passed the first journal entry कि अब फर्म को जो इंटरेस्ट है वो मिलने वाला है। वाई, फर्म ने लोन दिया है फर्म पार्टनर सी को, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज एन इनकम। वो इनकम है फर्म के लिए। तो सारी की सारी इनकम्स वी नो हम क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पे हम उसका करंट अकाउंट कम कर रहे हैं। अगर कैपिटल अकाउंट होता तो हम कैपिटल अकाउंट कम करते। कैपिटल जब भी कम होती है उसको डेबिट में लिखते हो, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट। इसको हम कहाँ राइट ऑफ करने वाले हैं, एज वी नो एवरी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इसको हम राइट ऑफ कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने डेबिट में क्यों लिखा, पहले तो हमने क्या किया था, हमने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, क्योंकि ये फॉर्म के लिए खर्चा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम्स दिखाई जाती हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, फॉर्म की इनकम है, दैट्स व्हाई
we'll credit this to the profit and loss account. Hope everyone is done, right? So this first step we have completed. I told you that first step is to pass the journal entries. First step we have completed. Now we are moving towards the second step of preparing profit and loss account, right? So let's get started. तो एक फॉर्मेट छोटा सा आप बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. सो आई एम मेकिंग अ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको हर चीज फॉर्मेट के थ्रू करनी है प्रॉपरली, otherwise examiner will deduct your marks, right? So everything you have to write in the right place. So particulars, amount, particulars, amount, and profit and loss account. This is the credit side, this is the debit side. Hope it's clear. Now, balance they have given of profit. तो बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं प्रॉफिट का? बाय बैलेंस बीडी, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट है, which is given in the question. That is 4,20,000. एंड क्या क्या जर्नल एंट्री आपने पास की, बस उसी की आपने पोस्टिंग करनी है यहाँ पे, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, ये इसका तो यहाँ पे कोई वो मतलब नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही आप जर्नल एंट्री को पिक करने वाले हो. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट. तो आप लिख दो इसको एज इट इज. क्या लिखने वाले हो आप? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, टू interest on A's loan account, that is 3,000. And check the second journal entry of C, this one. तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट. तो I'm writing here by interest on C's loan, that is 7,500. So इसका as clearly we can see, this credit side is bigger, 4,20,000 plus 7,500, and the total, that is you are getting 4,27,500, and here also 4,27,500. तो इसमें से अगर आप 3,000 डिडक्ट करते हो, यू आर गेटिंग 4,24,500, राइट? तो इसको आप क्या लिखने वाले हो? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये जो हमने इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किया, लेने का भी देने का भी, वो आपने दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब जो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा आफ्टर क्लियरिंग द चार्ज, राइट? तो चार्ज वाली आइटम्स क्लियर करने के बाद आपके पास जो भी प्रॉफिट बचा, वो आप लेके जाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट? So successfully we have completed the second step also of preparing profit and loss account. Now I'm moving towards our step number 3. So we are moving towards the step number 3, that is profit and loss appropriation account. So again, I'm making a format of profit and loss appropriation account. So side by side, you guys can also make the format of profit and loss appropriation account. I'm trying my best so the things can be very much clear to you people. But if in spite of that, if you are having any doubt,
Again and again, I say that you can write me in the comment section to get more clarity on all the things, right? So write the heading. Just, just a second, right? Yeah. So profit and loss, appropriation account. Here, particulars, amount, particulars, amount. So जो हमने ट्रांसफर किया नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई एम राइटिंग हियर बाय profit and loss account, and in bracket you can write net profit transferred from profit and loss account, right? That was 4,24,500, right? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को नहीं बोला, सैलरी देने को नहीं बोला, सो वी डोंट हैव एनी अप्रोप्रिएशन देयर. So as it is, you can transfer this profit to the partner's current accounts. Okay. So we'll write here to profit transferred to partners' current accounts. So to A's current account, A's current account, B's current account, and C's current account. So 4,24,500 आप लिखोगे total both sides, 4,24,500, और इसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे बिकॉज हमारा पीएसआर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वल, राइट? सो 4,24,500 डिवाइडेड बाय 3, यू आर गेटिंग 1,41,500 फॉर ईच पार्टनर. Same amount, 4,41,500, 4,41,500, and you can write here 4,24,500. तो दिस वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि कुछ भी अप्रोप्रिएशन नहीं था, जस्ट वी हैव डिवाइडेड द प्रॉफिट एज वी हैव ट्रांसफर्ड द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? सो दिस फोर्थ थर्ड स्टेप, इज इट थर्ड? ये भी हमने स्टेप कंप्लीट किया. एंड लास्ट वी आर just let me just a second, guys. Just let me open the whiteboard again. Yeah. So देख लेते हैं हमने कितने स्टेप कंप्लीट किए. तो हमने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, that is preparing of partners current accounts. So make a format. एक फॉर्मेट बनाओगे आप, एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम जिसमें हम पार्टनर के करंट अकाउंट बनाने वाले हैं. सो आप 3 कॉलम्स यहाँ पे लेके चलने वाले हो. 3 कॉलम्स बनाओगे आप बिकॉज वी हैव 3 पार्टनर्स. 3 कॉलम ही आप डेबिट साइड पे बनाने वाले हो एंड 3 कॉलम ही आप क्रेडिट पे. सो डेबिट क्रेडिट पे 3 कॉलम आप बनाओगे फॉर ईच पार्टनर A, B, and C, right? So I'm writing the details here. This is date column. No, not required. Okay. Particulars A, B, C. Here I'll write current accounts.
particulars A, B and C. तो करंट अकाउंट का हमें बैलेंस नहीं दे रखा, वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हमारे पास। तो जो अभी हमने ट्रांसफर किया इनके करंट अकाउंट का, ये बैलेंस बस हम लिखने वाले हैं बाय प्रॉफिट एंड, क्या लिखने वाले हो आप, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने इनको जो जो भी प्रॉफिट दिया, जो कि सेम था 1,41,500, 1,41,500 एंड सेम 1,41,500, राइट। तो और हमने जो इंटरेस्ट था सी का, जो इंटरेस्ट था हमारा सी का, हमने उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट किया था, दिस वन सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या लिख देंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट, क्योंकि जो भी यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा सी के क्या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। सो टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, दैट इज इसके करंट अकाउंट से चार्ज किया जाएगा जो फॉर्म ने इससे इंटरेस्ट लेना है। ओके। सो और कोई भी हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं है फॉर द टाइम बीइंग जो कि हम करंट अकाउंट में लिखें। तो बस अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो राइट द टोटल्स, टोटल लिख देते हैं हम 1,41,500, सेम हेयर, सेम हेयर एंड दिस साइड ऑल्सो। तो अब हमारे पास बैलेंस निकालेंगे हम, टू बैलेंस सी डी। बस सी का हमें ये डिडक्ट करना है, अदरवाइज बाकियों का ए और बी का सेम आने वाला है। 1,41,500, 1,41,500, तो 1,41,500 में से ये अगर आप डिडक्ट करते हो यू विल गेट 1,34,000। तो होप हमारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। एक बार मैच कर रही हूँ मैं। करंट अकाउंट या डिविजिबल प्रॉफिट था हमारा 4,24,500, दिस इज ओके, राइट। एंड द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट सर 1,41,000, दिस इज करेक्ट। एंड अगेन बी का 1,41,500 करेक्ट, एंड सी का 1,34,000, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो एक बार आप रिकैप इसका देख लोगे कि हमने क्या क्या किया इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें तीन पार्टनर थे ए बी सी, देयर पीएसआर is 1:1:1 एंड प्रॉफिट दे हैव गिवन 4,20,000, उनकी कैपिटल्स दे दी। और फर्म ने ए से लोन लिया एंड फर्म ने सी को लोन दिया, और सी कितना इंटरेस्ट देने वाला है फर्म को एट द रेट ऑफ 10%, राइट। तो फिर हमने स्टेप्स लिखे कि क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, देन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टेप 3 में वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड लास्टली they have asked in the question that prepare the current accounts of the partner, right? सो ए का लोन अकाउंट का हमने जर्नल एंट्रीज किया दोनों, एंड सी की दोनों जर्नलाइज किया हमने इंटरेस्ट की एंट्रीज को। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स एंड यू कैन राइट मी अगर कुछ दिक्कत आती है तो। एंड ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। एंड लास्टली हमने बनाया पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, जिसमें हमने बैलेंस निकाल के अपना आंसर भी मैच कर लिया है। होप द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल। वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की अगर आपको लगता है कि देयर इज a need of any improvement, you can write me in the comment section. Have a good day. Meeting in the next video. Take care. Bye bye. Thank you so much.